اور اسی طرح سے ان کے ترجمان چیئرمین PDM پاسٹر وکٹر احمدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور آج کے قصے کے ترجمان کے طور پر شکریہ. I'd like to share with you tonight. آج رات میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. This well-known parable. یہ جو کہانی آپ نے اس بیٹی کے منہ سے سنی ہے یہ بہت مشہور ہے. That Jesus told. یسوع مسیح نے یہ تمثیل یا مثال بتائی. In fact, he told 3 stories. فی الحقیقت اس نے 3 کہانیاں بتائیں. And this was the last. اور یہ ان کہانیوں میں سے آخری کہانی تھی. I've called this story not the prodigal son. اس کہانی کو میں نے پتہ کیا نام دیا ہے؟ مصرف بیٹا نہیں. But I want to tell you, not the prodigal son. That is true. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب مصرف بیٹا نہیں، مصرف نہیں. But the story here is of a loving father. بلکہ یہاں کسی اور کی کہانی ہے، ایک محبت اور پیار کرنے والے باپ کی کہانی. You would have heard the story and read to by our sister. جو ہماری بہن نے یہاں کہانی پڑھی وہ آپ نے سنی ہوگی. The story of the younger son. The younger son. ایک جو چھوٹا بیٹا تھا باپ کا، اس کی کہانی. Who asked his father, جس نے اپنے باپ سے پوچھا, give me my inheritance. مجھے میرا حصہ دیا جائے. Now this was not wrong. اپنا حصہ مانگنا غلط بات تو نہیں تھی. He had every right to ask this. کیونکہ یہ اس کا حق تھا بیٹا ہوتے ہوئے کہ وہ اپنا حصہ مانگ سکتا. But he was too early. لیکن اتنی جلدی حصہ مانگ رہا. And so it says that the father divided to them. لکھا ہے کہ باپ نے اس حصے کے 2 حصے کیے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے 2 حصے کیے. Notice that. اس پر غور کیجئے گا. He divided to the son, the younger son, and the older brother. اس نے بڑے بھائی کا بھی حصہ نکال لیا اور چھوٹے بھائی کا حصہ بھی علیحدہ کر دیا. Now this is a marvelous story. یہ ایک بڑی ہی عظیم الشان کہانی ہے. It connects with my life. یہ میری زندگی کی کہانی ہے. Every story that's in the Bible can connect with our lives. ہر کہانی جو خدا کے کلام میں ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے. This is a living book. یہ زندہ کتاب ہے، مقدس کتاب. یہ کتاب زندہ رہتی ہے. آمین. It's wonderful. It's a wonderful book. عجیب اور عظیم ایک کتاب ہے. But this son, لیکن یہ بیٹا, this young son, یہ چھوٹا بیٹا, he didn't realize how selfish he was. اس نے کبھی یہ محسوس ہی نہ کیا کہ کتنا خود غرض وہ ہے. And how he touched اور کس طرح اس نے اپنے باپ کے دل کو دکھایا ہے. He only cared about himself. اس نے صرف اپنا خیال کیا، اپنے باپ کا نہ کیا. How often we only are interested in ourselves. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی ہی غرض میں دلچسپی رکھتے ہیں. He had to learn the hard way. لیکن اس مصرف کو ایک مشکل راستے سے گزر کر سیکھنا پڑا. But I'm glad. لیکن مجھے خوشی ہے that God allows us to learn. کہ خدا ہمیں سیکھنے کا موقع دیتا ہے. In some way, sometimes the hard way. اور کبھی کبھی یہ سخت راستہ ہوتا ہے، مشکل، جس سے ہم سیکھتے ہیں. You know, let me say this. You cannot enjoy what money can buy if you ignore the things that money cannot buy. Hallelujah. آپ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے جو پیسے سے ملتی ہیں، جب تک کہ ان چیزوں کا مزہ نہ لیں جو پیسے کے بغیر ملتی ہیں. Things that money can't buy. ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیسہ خرید ہی نہیں سکتا. Things like appreciation. اگر ہم شکر گزاری کو دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں بھی شکر گزاری نہیں خرید سکتے. Respect. کسی کی عزت.
पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। Respect for others, दूसरों की इज्जत करना पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। love and kindness, मोहब्बत और मेहरबानी पैसे से नहीं मिलती मेरे दोस्तों। you see, this son went down. देखें, ये जो बेटा था ये बहुत नीचे चला गया। But you know, sin always promises freedom. ऐसा लगता है जैसे कि गुनाह हमें आजादी देने वाला है, खुशी देने वाला है। Do it your way. वो कहता है अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। That's what sin says. Do it your way. ये गुनाह कहता है अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। But it brings slavery. लेकिन वो गुलामी में फंसा देता है। It promises success. वो कामयाबी के दिलासे देता है। You can get what you want, वो धोखा देता है कि जो कुछ चाहे तुम्हें मिल जाएगा, but it produces slavery. लेकिन उसका फल जो है वो गुलामी पर खत्म होता है It produces failure. और वो नाकामी को पैदा करता है। It promises always this way of its promises life. वो ऐसे लगता है जैसे कि जिंदगी का वादा करता है, But it actually brings death. लेकिन वो मौत लेकर आ जाता है। यह है गुनाह का काम। And this son didn't realize it. लेकिन ये बेटा ये इस बात को महसूस नहीं करता। He was rebelling. ये एक बागी बेटा था। He was a rebel in his heart. वो अपने दिल के अंदर एक बागी इंसान था। He went to a distant land वो एक बहुत दूर दराज मुल्क को चला गया। and he spent all that he had जो कुछ उसके पास था सब के सब उसने अय्याशियों में गुजार दिया। until one day सब कुछ खर्च किया और एक दिन his friends left him. उसके दोस्त कंगाल को देखकर छोड़ गए। The money ran out उसका पैसा खत्म हो चुका था and he found himself और उसने अपने आप को देखा at the pig pen. अपने आप को देखा उस सूरों के दरमियान। What a sad story कितनी गमनाक ये कहानी है। for such a beautiful young man. इतना खूबसूरत बेटा जिसका बाप दिल की गहराइयों से उससे प्यार करता है, उसका क्या हाल होता है। You know, this young man, मेरे अजीजों, ये नौजवान he thought by leaving उसने सोचा कि जब वो छोड़ देगा he would find himself. तो उसके बाद वो अपने मर्जी को पाएगा और अपने आप को पाएगा। I will go and find myself. मैं जाऊंगा और अपनी जिंदगी अपनी मंशा के मुताबिक पाऊंगा। But he only lost himself. लेकिन उसने सब कुछ खो दिया, अपना आप भी खो दिया। He only lost himself. उसने अपना आप खो दिया। But you know, मेरे अजीजों, in this story, इस कहानी के अंदर he came to his senses. आखिरकार वो होश में आता है। The rebel वो जो बागी था, came to repentance. वो गुनहगार तौबा की तरफ माइल हो जाता है। From rebel बागी होने से to repentance. वो तौबा करने वाले की तरफ आ जाता है। He came to himself. वो अपने एहसासात और अपनी होश में आ जाता है He came to the end of himself. और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के आखिर में आ जाता है। And this means that he changed his mind. इसका मतलब है वो अपने गुनाहों से तौबा करता है और अपना दिल दिमाग तब्दील महसूस करता है। He came to see वो ये देखने के लिए देखता है that his behavior कि उसका जो रवैया है was sinful. वो गुनाह का रवैया है। And he said in his heart, और वो उसके अपने जो दिल है उसके अंदर वो उसको महसूस करता है। my father's servants are better off than eating this वो pig's कहता corn. है अपने दिल में कि मेरे बाप के यहाँ जो नौकर है वो भी इन सूरों से अच्छी खुराक खाते हैं। Let me say to you, मेरे अजीजों, आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूँ and you may agree, और शायद आप मेरी बात पर एग्री करें, he was unworthy of his father's love. अब उसका कोई हक नहीं था
कि वो अपने बाप के प्यार का मतलाशी होता। Every person is unworthy of the Father's love. इसी तरह हर इंसान जो यहाँ बैठा है, जो गुनहगार है, वो आसमानी बाप के प्यार का कोई हक नहीं रखता। Jesus told this story यीशु मसीह ने ये कहानी बताई to the religious elite of the land, उन लोगों को जो कि मजहब के ठेकेदार समझे जाते थे, to the most educated of the land. वो लोग जो अपने आप को बहुत तालीमी याफ्ता कहते थे, उनको ये कहानी सुनाई, Because they said, he eats with sinners. क्योंकि वो फकीर फरीसी कहते हैं ये तो गुनहगारों के साथ खाता पीता है। And he wanted to let them know लेकिन वो उनको बता देना चाहता था in this story इस कहानी के जरिया that they were lost. कि गुनहगार तो As lost. गुमशुदा है, As lost वो as the गुमशुदा है, son. वो गुमशुदा है, जिस तरह कि ये बेटा गुमशुदा था। He was trying to communicate this to them. और ये बात वो उन फकीरों फरीसियों और मजहब के ठेकेदारों तक पहुंचाना चाहता है। But the boy, the young man, लेकिन ये लड़का जो नौजवान था, came to the end of himself. ये अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंच गया। That happened to me. मेरे अजीजों, ये मेरे साथ भी एक दिन हुआ। That happened to my son. मेरा जो बेटा है, मेरा अपना बेटा, उसके साथ ऐसे हुआ। I will tell you about that. मैं अपने बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। More about that. About my life and my son. मैं अपनी जिंदगी के बारे में कल आपको कुछ बताऊंगा। He's 33. मेरा बेटा जो है, उसकी उम्र 33 साल है, The same age as Jesus was when they crucified him. उसी उम्र का जिस उम्र में यीशु मसीह को लोगों ने मसलूब किया। 33 साल की उम्र का है मेरा बेटा। You know, the Bible says बाइबल में लिखा है that is the goodness of God ये खुदा की भलाई है, उसका प्यार है that brings us to repentance. कि जिसकी वजह से हमें तौबा तक हमारी नौबत पहुंच जाती है। The goodness of God. खुदा Not की God's भलाई, judgment. खुदा तो हमें हमारी अदालत नहीं करता। The love of God. खुदा का प्यार, How could God express his love? किस तरह खुदा अपनी मोहब्बत हम तक पहुंचा सकता है? Like this earthly father. जिस तरह कि ये जो दुनिया का बाप है, ये अपने बेटे से प्यार करता But है, far greater. लेकिन बहुत ज्यादा प्यार, इससे कई ज्यादा प्यार वो बाप हमसे करता है। And one day the son, एक दिन जो बेटा है, he said I'll go to my father. उसने कहा मैं आज अपने बाप के पास जाऊंगा। And I'll say, Father, I have sinned against you मैं अपने बाप से कहूंगा, ए बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है and against heaven. और आसमानों का गुनाह किया है। He wanted to go to the Father and ask forgiveness. वो अपने बाप के पास जाना चाहता है और उससे माफी मांगता है। He knew he was wrong. वो जानता था कि वो गुनाहगार है, उसने गलती की है। Do we know some of that for ourselves? क्या हम जानते हैं That we कि हम गुनहगार हैं? that we may be away from God? क्या हम अपने बाप खुदा से दूर तो नहीं? I want to challenge you tonight मैं आज रात आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, about this story. इस कहानी से अपनी जिंदगी पर गौर करें। But I've only spoken of rebellion. मैंने आपको उसके बागी होने के बारे में बताया, I've only spoken of repentance. और ये भी मैंने बताया कि किस तरह वो तौबा करता है और अपने बाप की तरफ चल पड़ता है। But I want to speak of rejoicing. लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशी और शादमानी के बारे में, The love of a father. बाप की मोहब्बत के बारे में, The love of an earthly father. एक जमीनी बाप की मोहब्बत, My love for my son. मेरे बेटे के लिए मेरा प्यार। I saw him in his destructive manner. मेरा बेटा जिसका नाम जैसन है, My son, एक दफा वो बहुत ज्यादा तबाहकारियों में पड़ my गया। son Jason. मेरा बेटा जैसन, I love him. मैं अपने बेटे जैसन से प्यार करता हूँ। 10 years 10 साल he was away from God. वो खुदा से दूर हो गया। 10 साल तक I tried to tell him. मैंने उसे बहुत दफा समझाने की कोशिश की, He wouldn't listen. लेकिन मेरा बेटा जैसन मेरी ना सुनता। 7 years it took before God dealt with me.
तकरीबन 7 साल गुजर गए। उसके बाद खुदा ने 7 years I tried to convince him. 7 साल तक मैं उसको कायल करता रहा, उसको मायल करता रहा। 13 years of age to 23. वो 13 साल की उम्र से 23 साल का हो गया। At the 7-year period, और 7 साल बीच में जो थे, God said to me खुदा ने मुझसे कहा in my heart, मेरे दिल में, when I was studying the Bible, जब मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था तो खुदा मेरे दिल से बोला। when I asked him what was wrong, जब मैंने उससे कहा कि क्या गलती है, he said, you are. तो उसने कहा तू गलत है। And I wept. और मैंने रोना शुरू कर दिया And I asked God for forgiveness. और मैंने कहा खुदा तू मुझे माफ कर। For all I had tried to convince him of. मैंने अपने बेटे को कायल करने की बहुत कोशिश की। People don't need more information. लोगों को इल्म की जरूरत नहीं। My son didn't need more information. मेरे बेटे को इल्म की जरूरत नहीं थी, He needed revelation. उसको तो मुकाशफा की जरूरत, Unveiling. ताकि वो पर्दा हट जाए और मोहब्बत सामने आ जाए। The power of the Holy Spirit. खुदा के पाक रूह की कुदरत की जरूरत Into थी। his life. उसकी जिंदगी में रूह कुदरत की जरूरत To थी, shine the light. ताकि उसकी जिंदगी चमक उठे। God said, stop it. खुदा ने कहा रुक जा, Don't say anything. कुछ भी ना कहे अपने बेटे You'll से, send him to hell. You'll send him to hell. वो दोज़ख में जाएगा। That was severe. ये एक बहुत बुरी खबर थी मेरे लिए And I wept. और मैंने रोना शुरू कर दिया। And for 3 years I said nothing. और 3 साल तक मैंने अपने बेटे से भी कुछ नहीं कहा, Only encouraged him. सिर्फ मैं अपने बेटे की हौसला अफजाई करता रहा। One day he sat in a church. एक दिन वो कलीसिया में बैठा हुआ था, चर्च में। First time for years. बहुत सालों के बाद पहली दफा वो चर्च में आके बैठा था And I preached. और मैं वहाँ खुदा का कलाम पेश कर रहा था। And he came to me. और वो मेरे पास आया। He said, Dad, उसने कहा अब्बा जान, in 1 year I will come back. मैं 1 साल के अंदर वापस आ जाऊंगा। I didn't believe it. मैंने उसका यकीन न किया। Lack of faith. मेरा ईमान कम था, कमी हो गई मेरे ईमान में। And nearly to that day, और उस दिन तक my son came back to Christ. पूरे 1 साल के बाद Gave मेरा his, बेटा दोबारा यीशु मसीह के पास आ गया। so I know और मैंने देखा what it is like किस तरह से ये खुशी मिलती है for this father, इस बाप के लिए, this earthly father, इस जमीनी बाप के लिए, that waited every day. जो हर रोज अपने बेटे का इंतजार And he करता है। looks वो down, रोज देखता है दूर looked तक, down the road वो रोड पर, सड़क पर दूर तक अपने बेटे every को day, देखता है, उसका इंतजार करता है, Waiting. हर रोज इंतजार करता है, loving प्यार से उसका इंतजार करता है for that son to come back. ताकि उसका वो बेटा वापस आ जाए। And one day he saw him. और एक दिन उसका बेटा And it उसको says, नजर आ गया it says that the father ran. और लिखा है कि जो ही उसने अपने बेटे को देखा, वो उसका बाप दौड़ता हुआ अपने बेटे की तरफ भागा। He picked up his robe उसने अपने जुब्बे को उठाया and ran, और भागा। which was a shame हालांकि यहूदियों में ये शर्म की बात हुआ करती है for any father to do that in a कि Jewish. एक बाप इस तरह जुब्बा उठा के भाग रहा है, A terrible shame. ये शर्म की बात लगती है। But the father loved him लेकिन बाप तो बेटे से प्यार करता है, and he ran to him वो अपने बेटे की तरफ भागा and he hugged him. और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। And before the son could say anything, और इससे पहले कि बेटा कुछ बोले, before the son could confess, इससे पहले कि बेटा अपने गुनाह का इकरार करे, the father saw into his heart बाप ने उसके दिल की तह को देख लिया। and he said, bring उसने कहा the ring of sonship. मेरे बेटे के लिए वो अंगूठी लाई जाए सोने की जो बेटे की निशानी है, And kill a fatted calf. और एक बहुत मोटा ताजा बछड़ा ज़बह किया जाए। And so और इस तरह we see in that story that the father said, kill the fatted calf. हम देखते हैं कि बाप ने अपने बेटे के लिए मोटा ताजा बछड़ा ज़बह कर लिया। Let's rejoice. आए उस बाप की तरह, उस बेटे की तरह आज रात हम भी खुशी मनाएं। This is just like this story Jesus told.
ये वो कहानी है जो खुदावंद यीशु ने बताई। It was to let people know that what the son learned. ये कहानी बताती है कि बेटे ने क्या सीखा। He learned to be away from his father. उसने सीखा कि बाप से दूर रहकर क्या क्या होता है। Was to have misery. बाप से दूर रहकर दुख और तकलीफ है। But he discovered लेकिन उसने क्या पाया, क्या दरियाफ्त किया? in all of this इस तमाम बात में mercy उसने खुदा की रहमत को, बाप की मोहब्बत को and wonderful kindness. और खुदा की मेहरबानी को, बाप की मेहरबानी को देखा। This story is an earthly father. ये एक दुनिया के बाप की कहानी है। Jesus, the Son of God, यीशु मसीह नासरी जो खुदा का बेटा है, told this story उसने ये कहानी बताई to tell those religious people ताकि उन लोगों को जो कि मजहबी है ये कहानी सुनाई जाए that they also were lost. क्योंकि वो भी तो गुमशुदा बेटे थे। And if they didn't have a relationship अगर वो राबता न रखते with the Heavenly Father, खुदा से जो कि आसमानी बाप है, they would need to come home. तो फिर उनको भी वापस बाप के पास आने की जरूरत है, चाहे वो मजहबी ठेकेदार है। The Heavenly Father आसमानी बाप in heaven जो आसमान में है, longs वो अपने दिल में ख्वाहिश रखता है for you to come home. कि आप सब वापस आ जाएं उसके पास। He waits, वो इंतजार करता है, He watches. वो देखता है। Will you turn to Him? क्या आज रात आज अपने बाप की तरफ मुड़ेंगे? Will you come to Him? क्या आज रात उसकी तरफ आएंगे? You can have repentance in your heart, आज रात आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, a change of mind, अपने ज़हन को तब्दील कर सकते हैं but a change of direction. और अपनी समत को भी तब्दील कर सकते हैं। And that's what this son had. और यही इस बेटे ने किया। I wonder if I'm speaking to someone here tonight. शायद ये आप में से किसी के साथ कलाम हो रहा है। You might be, शायद आप महसूस करते हो, I might be speaking to someone down the front. शायद अगली रो में किसी के साथ कलाम हो रहा है, I might be speaking to someone in the choir. शायद क्वायर में किसी के साथ खुदा ये कलाम कर रहा है। I'm certainly speaking to my own heart, मैं अपने ही दिल से भी कलाम कर रहा हूँ। regardless of our station in life. जो कुछ भी हमारा आता है उसको छोड़ते हुए We need to have a right relationship with the Heavenly Father. हमें अपने बाप के साथ वो ही सीधा राब्ता रखना है, कायम करना है। Open, अब खुला राब्ता, honest, ऐसा जिसमें दयानतदारी है, not fake, ऐसा जो कि झूठा नहीं real. बल्कि सच्चा है, हकीकी है। And I might be speaking to someone right up the back there. शायद पीछे, बहुत पीछे कुछ लोग बैठे हो And you- जिनसे खुदा कलाम कर रहा है। You think this is just a story, शायद कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हो ये तो सिर्फ कहानी है, but the Spirit of God is speaking to you, लेकिन खुदा का पाक रूह आपसे बोल रहा है, touching your life, आपकी जिंदगी को छू रहा है। खुदा का पाक रूह saying to you, आपसे कह रहा है, as your heart beats faster, जिस तरह कि आपका दिल सुन के कलाम धड़कना तेज कर रहा है, you need to do something about it तुमको tonight. आज रात तौबा करने की जरूरत है। You need to come down the front. आपको सामने आने की जरूरत है। But before we do, इससे पहले कि हम ऐसा करें, with every eye closed here, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, every eye. हर आंख बंद हो जाए यीशु की हुजूरी में। If you know that the Spirit of God has spoken to your heart, अगर खुदा का पाक रूह आपसे God बोला is है, touching your life, खुदा ने आपके दिल को छुआ है, you've listened to this story, खुदा आपने इस कहानी को सुना है and the Bible is saying to you और खुदा का कलाम आपसे कह रहा है what Jesus said in Revelation, जो खुदा ने मुकाशों में कहा, the last book of the Bible. खुदा के कलाम की आखिरी He किताब says this to you tonight. मुकाशों में ये लिखा है, I stand at the door and knock. और आज भी वो कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। He is standing at the door of your heart. आपके दिल के दरवाजे पर आज रात वो खड़ा, He is knocking on your life. वो आपकी जिंदगी को खटखटा रहा है। He is saying, वो कह रहा है I stand at the door and knock of your heart. मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ If खटखटाता you हूँ। open the door, खोल अपने दिल के दरवाजे को। if you open the door,
अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोले, if you open the door, अगर आज रात तू अपने दिल का दरवाजा खोलता I है, will come in. मैं अंदर आऊंगा, I will come in. मैं अंदर आऊंगा, Not maybe. मैं भी नहीं, शायद नहीं, यकीनी अंदर आऊंगा, And I will have fellowship and eat with you. मैं तेरे साथ रूह की रफाकत रखूंगा और When you- खाना खाऊंगा। When you have fellowship with Jesus, जब यीशु के साथ रफाकत हो जाएगी, it is a relationship. तो ये वो राब्ता है, The closest relationship. वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा नजदीकी है। He wants to be the Lord and Savior of your life. वो आपकी जिंदगी का मालिक और निजात And देता होना चाहता है। with every head bowed आओ हम सब अपने सरों को झुकाएं, and every eye closed, हर आंख बंद रहे। if God has spoken to अगर you, खुदा ने आपसे बात की आज रात, you know it's true. और ये सच है, He has said to you, this word is true. ये सच्चाई का This कलाम is आपसे not उसने just किया, some fake fable. ये सच्चा कलाम है, झूठा नहीं। He is speaking to your heart. वो आपके दिल से बोल रहा है। Would you lift your hand in response? अगर आपके दिल से वो बोला है तो अपना सीधा Lift हाथ your आसमान hand in की तरफ response. उठाएं, सीधा If हाथ। God has spoken to your heart, बाकी सब अपनी आंखें बंद रखिए, just lift your hand. Don't worry about your problem. एक दूसरे की फिक्र न करें, अपना सीधा हाथ उठाएं। अगर Lift यीशु your hand. आपसे बोला है, अपना सीधा हाथ उठाएं And say, I want to give my life to you. और कहें, यीशु मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, I देती want to हूँ, commit my life to you. अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ, देता हूँ। And now that you've lifted your hand, I want you to ये stand. बहुत से हाथ आगे खड़े हुए हैं। Will you do that? Will you stand where you अभी भी are? अगर कोई अपना हाथ खड़ा करना चाहता Will है you तो खड़ा stand करे। now? और जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। I want to pray for सिर्फ वो you. लोग जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, आज उनकी जिंदगी से कलाम बोला है और खुदा के पाक उन्हें छुआ है, वो खड़े होंगे और अपने गुनाहों से खुदावंद से माफी मांगेंगे। यस, I believe that this is a step that could decide many, many things about your life. मेरा ईमान है कि ये कदम जो आपने उठाया है आज रात, जितने खड़े हैं, ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा फैसला है जो बहुत कुछ खोलेगा आपके ऊपर। God wants you to find your way. खुदा चाहता है कि आप अपना रास्ता तलाश करें। And as the musicians play, जिस तरह के खुदा के जो क्वायर है और जो म्यूजिशियन है will you come forward right from the back वो गीत गाने लगे हैं, and stand down here at the front and make this an उनके altar गीत गाने के of Lord दौरान worship to जो God. खड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम खड़े हुए लोग आज आगे आ जाएं। Come forward as they play, straight away. I'm not going to make a long appeal. जो लोग खड़े हुए हैं वो सब आगे आ जाएं। You come. Hallelujah, praise God, Hallelujah। सिर्फ वो लोग जो खड़े हुए हैं वो आगे आ रहे हैं और वही आएंगे। अभी बीमारों के लिए बात। Praise God। As people keep coming, there's still time to come. I want to pray for you. और यीशु के साथ अपना रास्ता कायम करें। We plead with you by the mercy of God. Come. खुदा का फजल याद दिलाकर कहते हैं कि आओ जिसने तौबा करनी है और यीशु से रास्ता करना है। He wants to bless you. वो आज रात आपको बरकत देना चाहता है। Let's pray. आइए हम दुआ करें। सब अपनी आंखें बंद कीजिएगा और आगे वाले लोग हमारे पीछे दुआ करेंगे। I'm going to pray now. You follow my prayer. जब मैं दुआ करता हूँ तो मेरे पीछे दुआ कीजिए। God, forgive me. सब बोले, खुदावंद मुझे माफ कर। I'm sorry for my life. खुदावंद मैं अपनी जिंदगी पर अफसुर्दा हूँ। I'm sorry that I've wandered from you. खुदावंद मैं तेरे से बहुत दूर रहा। And I realize to some degree there is lostness in my life. खुदावंद मेरी जिंदगी एक खोई हुई जिंदगी है। I'm sorry. मेरे पीछे पीछे बोले, Please forgive me, Lord. यीशु मुझे माफ कर। I'm coming back to you with all my life tonight. आज रात मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूँ। I'm coming back just like that young lost son. मैं उस जवान बेटे की तरह वापस आता हूँ। I repent. मैं तौबा करता हूँ। Please forgive me, Lord. खुदावंद मुझे माफ कर। Thank you. तेरा शुक्र हो यीशु।
Thank you. तेरा शुक्र हो यीशु, Thank you, Lord God. तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, Thank you, Lord Jesus. खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, Holy Spirit, पाक रूह तेरा शुक्र हो for your forgiveness. तेरी माफ करने के लिए। I want to start again. खुदा आज से ये मेरी जिंदगी I नए want तौर to से, make a fresh start. मैं एक ताज़े तौर पर जिंदगी शुरू करूंगा। Thank you that you give me this opportunity. तेरा शुक्र हो आज रात तूने मुझे मौका दिया है, Praise your name. तेरे नाम की तारीफ हो। Amen. आमीन आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। आइए हम दुआ करें। मैं पादी साहिबान से कहूँगा कि सब खड़े हो जाएं और इन तमाम की तरफ हाथ करके जिन्होंने आज अपनी जिंदगी यीशु को दी है इनके लिए दुआ कीजिएगा। और आप तमाम से दरख्वास्त है आप हमसे बाद में मिलिएगा जिन्होंने आज रात यीशु को अपनी जिंदगी दी। प्यारे खुदा यीशु राजा तेरा शुक्र करते हैं इन जिंदगियों के लिए। प्यारे खुदा आज रात इन्होंने तेरे प्यार को कबूल किया और अपनी जिंदगियों में तौबा की, अपने गुनाहों को छोड़ा है। यीशु जी उन्हें माफ कर,